पहला आज थर्मोडायनेमिक्स ये कर लेने हैं ना। कर भी अपना कुनाल थर्मोडायनेमिक्स का। A piece of lead is dropped from an aeroplane at a height of 200 meters. If 60% of the striking energy is converted into heat, calculate the rise in temperature of the piece of lead. Specific heat of lead is 127.7 joule per kg. चलो आप कर ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪੀਸ ਨੂੰ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਸੀ ਨੀਚੇ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਕਾਈਨੈਟਿਕ है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी का है फार्मूला mgh। उन्हें क्या है भी ये ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ है ना ਇਹਦਾ 60% ਕਾਦੇ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਇਆ ਹੀਟ ਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚ q ਕੀ ਹੈ 60% of mgh मतलब 0.6 mgh 60 by 100 ये q है। और इस हीट ने की किया टेंपरेचर बढ़ाता। हुन हीट और टेंपरेचर का संबंध की हुंदा mc। तो ਇਹਦਾ मतलब लेफ्ट साइड ਤੇ mc डेल्टा थीटा राइट साइड ਤੇ 0.6 mgh mm गए कट तो डेल्टा थीटा लो ਹੁਣ g पता ही है ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ 9.8 ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ sh h ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 200 ਮੀਟਰ ਤੇ c ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 127. ਉਹ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ठीक है। तू बोल नीतीश। A quantity of oxygen is compressed isothermally until its pressure is doubled. It is then allowed to expand adiabatically until its original volume is restored. Find the final pressure in terms of the initial pressure. Take gamma is equal to 1.5. हाँ हम देखो quantity of oxygen is compressed isothermally until its pressure is doubled. Initial stage pressure P मान लिया वॉल्यूम V मान लिया। हम उस तो बाद आइसोथर्मल कंप्रेशन हुई वॉल्यूम की हो गया V डैश प्रेशर हो गया। पर ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ until its pressure is doubled तो P dash 2P ये गिवन है तो है ना। It is then allowed to expand adiabatically until its original volume is restored। ਹੁਣ B ਤੋਂ C adiabatic expansion है और इस एक्सपेंशन जो वॉल्यूम की हो गया रिस्टोर जितना शुरू च सी देखो
आइसोथर्मल प्रोसेस है तो P1 V1 is equal to P2 V2. V डैश आ गया। अच्छा, उस तो बाद आ केड़ा प्रोसेस है हुण इहदे विच P1 V1 रेज टू पावर गामा, इहदे विच PV कांस्टेंट नहीं है, PV रेज टू पावर गामा कांस्टेंट। तो आपा की लभना सी इहदा फाइनल प्रेशर P डबल डैश ही लभना, तो P डबल डैश की आ जाएगा P डैश V डबल डैश रेज टू पावर गामा। हुण P डैश की वैल्यू V डैश कितना है V डबल डैश टू P V नाल V कटे गया, नीचे 2 है ना, तो ये आंसर आ गया गामा की वैल्यू है ना। तो थोड़ा आंसर आ है ना, क्योंकि ऊपर पावर 2 दी यानी -0.4 गामा 1.4 है ना, तो नीचे आप इधर लिख सकते हैं ये लॉग तो सॉल्व होना है ना, बोल भी लिखिए थर्ड। PV diagram for a cyclic process is shown in figure. Calculate work done during the process from A to B, B to C and C to A. Also calculate the work done in the complete cycle. देखो ਇਹਦੇ ਚ ध्यान रखना प्रेशर है SI का वॉल्यूम लीटर च है 1 लीटर ना 10 रेज़ टू पावर -3 क्यूबिक मीटर होता है SI कन्वर्ट कर लेना। अच्छा A B C 2 4 4 1 2 1 PV होता ना, तो प्रेशर 4 है, वॉल्यूम 1 है, प्रेशर 2 है, 4। अच्छा हम देखो A to B एरिया
ਹੁਣ एक ट्रपीजियम है ना ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ A B C D ਤੇ E ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ A B ग्राफ है ना एंड वॉल्यूम एक्सिस तो ये बन गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम केडी ट्रेपेजियम है ये बनेगा हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स सो एक साइड आया 4 एक आ साइड है 2 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना 3 ये 3 लीटर है ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ जबकि ये न्यूटन पर स्क्वायर मीटर है तो ये बन गया वर्क डन जूल चल गया ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਹਿਲੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਉੱਪਰ ਇਹਦਾ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਐਡ ਕਰਕੇ हाँ बिल्कुल जी इधर करके प्लस है अच्छा फिर आप करना वर्क डन फ्रॉम अच्छा हम ध्यान देंगे बेटा इधर A to B एक्सपेंशन है तो इसका मतलब है पॉजिटिव वर्क है बट B to C ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ और ये एरिया कितना करना अब कितना रेक्टेंगल का लेंथ इनटू 2 into 3 अच्छा फ्रॉम C to A ये 0 है और टोटल एरिया क्या होगा मतलब टोटल वर्क डन तीनों वर्क डन की कर लो ऐड कर लो या फिर साइक्लिक प्रोसेस बन गया ना टोटल तो एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व ट्रायंगल का एरिया कर लो ठीक है ਹੁਣ आओ क्वेश्चन नंबर 4 देख भी बना At 0 degree Celsius and normal atmospheric pressure, the volume of 1 gram of water increases from 1 cubic centimeter to 1.091 cubic centimeter on freezing. What will be the change in internal energy? Normal atmospheric pressure is 1.01 into 10 raised to the power 5 Newton meter per square, and the latent heat of melting of ice is equal to 80 Kelvin per gram. ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ पानी फ्रीज हो रहा है ਇਹਦਾ मतलब हीट इज और इवॉल्व्ड हीट ਨੂੰ ਆਪਾਂ 네ਗੇਟਿਵ ਲੈਣਾ एब्जॉर्ब ਨੂੰ पॉजिटिव ਲੈਣਾ फिजिक्स और क्योंकि पानी तो बर्फ बन रही है कितना मास है 1 ग्राम 1 ग्राम LF कितना देता है तो -80 कैलोरी तो -80 into 4.2 जूल ये हीट आ गई जूल्स ठीक है इतनी हीट इवॉल्व
ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਸਟ ਲਾ ਆਫ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਲਈ Q ਦੇ ਨਾਲ W ਚਾਹੀਦਾ। Q ਆ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਵਰਕ ਡਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, क्योंकि ये सारा प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा, तो प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। हुन इनिशियल वॉल्यूम देखो तो है ना, VI है 1 है ना, ते VF है, तो ਇਹਦਾ मतलब W ध्यान रखना प्रेशर तो है एटमॉस्फेरिक कितना 1.013 into 10⁵, तो चेंज इन वॉल्यूम की आया 0.091, क्यूबिक सेंटीमीटर नु क्यूबिक मीटर बनाना SI समझ गए कितना 10⁻⁻⁶, तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर 10⁻⁻⁶ क्यूबिक है ना। तो W अलग काट लिया, Q अलग काट लिया, क्योंकि W जूल च है SI, तो Q भी SI कन्वर्ट कर लेना। आ जाएगा, बोल उत्तर। फिफ्थ, A sound wave passing through air at NTP produces a pressure variation of 0.0019 per centimeter square during the compression. Find the corresponding change in temperature. For air, gamma is equal to 1.5. सब तो पहला इतने नोट करो, क्योंकि साउंड वेव बारे आपा पढ़ना वा हले, तो लिखो कि प्रोपोगेशन ऑफ साउंड थ्रू एयर, ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ के वेव ਜਦੋਂ हवा चो लंघदी है, is an adiabatic process, is an adiabatic process। मतलब इस क्वेश्चन चो हमें समझ आ गई कि जो साउंड वेव करके हवा कंप्रेस हो रही है वो एडियाबैटिक कंप्रेशन। अच्छा, प्रेशर चेंज हो रहा ना, हो रहा, तो जो प्रेशर वेरिएशन मिलती है वो है चेंज इन प्रेशर, कितना 0.001 है ना। तो चेंज इन टेम्परेचर कटना। हम थोड़ा ध्यान रखना, डाइन दे विच 10⁻⁻⁵ न्यूटन होंगे, SI कन्वर्ट करना ना, ते पर स्क्वायर सेंटीमीटर सेंटीमीटर जो होंगे है 10⁻⁻² मीटर, ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ -2, है ना, आही बन गया। तो ਇਹਦਾ मतलब dp ਕੀ आ गया 0.001 into 10⁻⁻⁵ न्यूटन ਦੇ ਨਾਲ SI कन्वर्जन हो गई।
इधरों 1 2 3 10 raised to power -3 -8 4 तो इतना प्रेशर चेंज हो गया सब तो पहला तो आप इनू एसआई च ले आंदा और ये प्रोसेस हो किथे रहा एनटीपी नॉर्मल टेंपरेचर प्रेशर तो नॉर्मल टेंपरेचर प्रेशर की होंदा नॉर्मल टेंपरेचर होंदा 273 केल्विन प्रेशर होंदा 1 एटमॉस्फेरिक ये गल्ला याद आ गई तो चेंज इन प्रेशर कढना है ना हुन देखो हुन क्योंकि जिहड़ी चीज नहीं सी पता वो मैं दसती है आज तो बाद याद रखनी कि साउंड वेव हाँ जो हवा चो लंघदी है तो एडियाबैटिक प्रोसेस हुंदा एडियाबैटिक प्रोसेस च प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन पता टेंपरेचर वॉल्यूम का भी पता तो प्रेशर टेंपरेचर का की हुंदा P V हाँ पर अपन लेना PT एक ही करन हाँ पुट करो करो फटाफट बनाना सीखो ना यही तो चीजा वा फटाफट करो इसको है ना आ बन गया इतना भी रहने दे सकते हैं इतना जितना मर्जी हुन आपां नूं डीपी और डीटी दे लिए की करना पैना है पहला ਜਦੋਂ P ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ प्लस प्लस पता लगा पहले यहाँ डिफरेंशिएट किया इनटू टी करता प्लस ता माइनस आ वाला टी पी दी पावर नाल डीपी ते नाल आ भी माइनस आ माइनस जो इथे गया था ये बन गया आ पी नीचे आएगा वहां दोनों बेस सेम है आ नेगेटिव पावर बन जानी ना ऊपर जाके ऐड होनी है तो 1 - 2 गामा ओवर गामा की बनया -2 गामा प्लस गामा माइनस गामा बाय गामा -1 तो इसका मतलब
की पावर -1 बन गई ना, तो p थले आ गया। लो अब फार्मूला तैयार हो गया। आंसर वैल्यूज पुट कर रही हो ना। नेक्स्ट देखो, सिक्स्थ ध्यान रखना कि 6 ਦੇ ਵਿੱਚ देखो ग्राफ दिता वा, केड़ा ग्राफ है? हाँ PT ग्राफ है, ना कि यह PV ग्राफ है। देखो प्रेशर एटमॉस्फेरिक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पास्कल जुना ना, टेम्परेचर केल्विन છે। आ AB वाला भी उतरा एरो इतना ध्यान में ठीक कर लो ना, एक एरो उल्ट पै गया ना, AB CD वर्क डन घटना आ एरो ना उसे ठीक कर लो। ध्यान दिए तो A तो B केड़ा प्रोसेस है? प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोबारिक प्रोसेस है ना। वैसे वर्क डन का फार्मूला की होंदा PdV V12, उन्हें याद रखना क्योंकि PV होंदा
ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆइसोबारिक ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ आइसोबारिक प्रोसेस तो P कांस्टेंट है जब आप डिफरेंशिएट करांगे ना आही डिफरेंशिएशन और राइट साइड पे आ बने तो आइसोबारिक च ਅਸੀਂ P dV ਨੂੰ NR dt NR कांस्टेंट्स है dt ਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ t t2 minus t1 t2 मतलब फाइनल टाइम है ना तो इथे फार्मूला सूट करेगा तो साडा वर्क डन फ्रॉम a to b क्या आएगा 2 into r into हुन देखो ਜਦੋਂ a ਤੋਂ b गए फाइनल टेंपरेचर 400 है इनिशियल है ना तो आ जाएगा आंसर अच्छा दूसरा वर्क डन केड़ा करना B to C क्यों क्योंकि BC टेम्परेचर कांस्टेंट है आइसोथर्मल प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन की होगा NRT log V2 over V1 या P1 over P2 समझ आई ਹੁਣ n ਦਾ ਹੈ 2r ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਈਸੋਥਰਮਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੇਲੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 400 ਹੈ log p1 ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 2 ਹੈ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 1 है इनू चेंज करने की नहीं लोड़ यूनिट ਨੂੰ ਤੇ log 2 नेचुरल log 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0.69 ਉੱਥੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਣਾ है ना C तो D केड़ा प्रोसेस है आइसोबारिक है तो आही फार्मूला फिर लिखना ध्यान रखना NR और इसे गड़बड़ नहीं करनी T1 है इनिशियल हुन आ है कितना सॉरी इनिशियल क्या है कैंसल आउट ही हो जाने दोनों वर्क है ना ते DA वाला NRP ये 2 है R है हुन आप प्रोसेस
log initial final 1/2 ਤੇ ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ log 1/2 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ minus log 2 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ a2 और इथों माइनस आ गया -2 r 300 log 2 है ना चारों वर्क आ गए टोटल वर्क डन कितना कटांगे हाँ हम आ देखियो हम जो आपका टोटल वर्क डन कटना तो एबी वाला वर्क डन आएंगे बीसी वाला है हाले कुछ नहीं करना सीडी वाला माइनस 200 नहीं हाँ अभी हाँ ठीक है 2 ही है ना 200 माइनस 200 आ प्लस आ वाला माइनस 600 आर log 2 ਹੁਣ ਆ ਤਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ log r कौन आ गया 200 r log 2 आंसर 200 r की वैल्यू 8.31 ਤੇ log की वैल्यू 0.6 सेकंड पार्ट की कटना और चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऊपर लिखा है साइक्लिक प्रोसेस च डेल्टा यू 0 होता तो डेल्टा यू 0 आ गया अच्छा हुन सी पार्ट च क्यू कटना हुन क्यू की है फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंगली क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू तो डेल्टा यू था तो डब्ल्यू क्यू के बराबर है या क्यू और W आप कर चुके हैं पहले वही आंसर सेवंथ आ जाओ सेवंथ प्रॉब्लम सेवंथ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ग्राफ गिवन है बेटा प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ
है गामा 5 by increases linearly from, तो मतलब इथे प्रेशर है 4 into 10 raised to power 5 और इथे हो गया प्रेशर the volume increases from वर्क डन कटोगे कर सकते हैं की बन जाना एरिया ऑफ ट्रेपेजियम या फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल ट्रेपेजियम का एरिया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स द डिस्टेंस आगे ना so 8 plus 4 12 by 2 6 so increase in internal energy देखो गैस है गैस दी इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी NCV डेल्टा टी पर याद रखना CV नु ਆਪਾਂ ਨਾ R ओवर गामा माइनस पता बा ये रिलेशंस याद रखने क्योंकि CP माइनस CV की होता ते गामा की होता हुन अगर मैं आ वाली दी इक्वेशन है इनु ਆਪਾਂ इधर लिख सकते हैं आगे है तो CV की बन गया इधर देखो डेल्टा U आ गया NR गामा माइनस 1 डेल्टा T का मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस NRT की होगा PV पता लगा है क्योंकि PV इज इक्वल टू तो जे इनिशियल टेम्परेचर है तो प्रेशर भी वॉल्यूम भी इनिशियली होएगा सो ਆਪਾਂ nRT2 ਨੂੰ P2V2 ਤੇ nRT1 ਨੂੰ P1V1 ਲਿਖ ਸਕਦੇ है ना ते हीट कितना कटांगे ते स्पेसिफिक हीट मोलर कितना कटी थी है मोलर स्पेसिफिक हीट होती है हीट पर यूनिट मोल पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन टेम्परेचर कितने बराबर है और देखो के बराबर नहीं तोड़
डेल्टा टी T2 माइनस T2 की जगह पे की लिख सकते हैं अपन P2 V2 ओवर NR ते T1 की जगह पे ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਥੇ डेल्टा T की जगह पे की लिख सकते हैं अपन NR ऊपर चल जाना अब लगा देखो इतो पुट करती ना वैल्यू ठीक है। अच्छा पहला 9th कर लो कितना टाइम हो गया 5 बज गए बस आ एक कर लिए 9th कर लिया बाकी कल भी आ जियो है ना ते बुध वीरवार छुट्टी कर दांगे ਤੁਹਾਨੂੰ बुधवार का टेस्ट ते अपना शुक्र शनि टेस्ट संडे रख देने ठीक वो कवर हो जाएगा ना सारी असाइनमेंट 4 दिन आप ला लेने फिर संडे टेस्ट हो रही मंडे तो छुट्टी कर देंगे या देख लांगे जे नहीं मूड करो फिर ला देंगे क्लास 9th देख लो जेडे हो गए वो टिक कर लो बाकी फिर मैं कल क्योंकि 8th ਵੱਡਾ है ना वो कल करेंगे 9th ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਗੈਸ ਇਜ਼ V1 and initial pressure is P1 is equal to 6 atmosphere. Atmosphere. It expands isothermally to volume V2. तो ये एक्सपैंड की थी आइसोथर्मली वॉल्यूम हो गया V2 प्रेशर रह गया 3 एटमॉस्फेयर and then adiabatically to volume V3 and pressure P3 और प्रेशर P3 है 2 एटमॉस्फेयर ध्यान देना बेटा एक्सपेंशन च की हुंदा वॉल्यूम बढ़ता प्रेशर पर ये आइसोथर्मल है ये ਇਹਦੀ स्लोप ज्यादा वा ਇਹਦੀ स्लोप ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ V2 over V1 and V3 over V2. V2 over V1 ਤੇ V3 over V2. ਆ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣਨੀ ਹੁਣ ਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜੁੜਿਆ ਵਾ ਆਈਸੋਥਰਮਲ ਨਾਲ मतलब P1 V1 is equal to A तो B आइसोथर्मल है ना तो P1 है 6 V1 P2 है 3 पर
V2 V3 जुड़े हुए हैं, ये आइडियाबैटिक है। P1 V1 V1 ना लिखेंगे अपन, P1 P2 P3 P2 V2 P3 V3 ऐसा लिखना। P2 over P3 गामा निकलता